اور کسی نے کہا تھا چپ کریں صبر کریں تے ہیرے مل سن، اس طرح کا کوئی میاں صاحب کا چپ کریں تے موتی مل سن، صبر کریں تے ہیرے، چپ کریں تے موتی مل سن۔ اب دیکھو نا حضرت، یہ گرمی بڑھ رہی ہے تو چپ کر رہا میاں، تیرا گرمی کہنا کو گرمی ٹر جانی، گرمی تو رہنی ہے، تو ایویں ہی اپنے وہ نامہ اعمال میں شکوے اور گلے لکھوا رہا ہے۔ یہ گرمی آنے لگی ہے نا، یا تو بتاؤ کہ میرے اور آپ کے گرمی کرنے سے چلی جائے گی۔ چپ کریں تو موتی مل سکے، موتی لے کیوں پڑا کرن دے بے تک۔ مئی بھی گرمی ہے، جون بھی گرمی ہے، جولائی بھی گرمی ہے، اگست بھی گرمی ہے، سپٹمبر بھی گرمی ہے۔ چپ کر تو موتی لے، تو باقی بول نہیں تو بیا بول نہیں ہے، تیرے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ چپ کریں تو موتی مل سن، صبر کریں تو ہیرے۔ جس رنگ میں رکھا ہے کوشش کرو، باقی جس رنگ میں اس نے رکھا ہے، عرض کی جب وہ دیتا ہے تو ہم شکر کرتے ہیں، جب اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے تو ہم صبر کرتے ہیں، ہم اس کے فیصلے پہ راضی ہیں۔ فرمایا اگر تمہارا یہی حال ہے تو رب کعبہ کی قسم تم مومن ہو۔ اس لیے حضرت جی اپنے بچوں کو بٹھاؤ، اپنے بچوں کو یہ سکھاؤ حضرت۔ یہ بڑی ابتدا میں یہ ایک بزرگ ہوئے شیخ سلیمان بن علی رحمۃ اللہ تعالی، آپ کی بارگاہ میں کچھ لوگ آئے اور عرض کی حضرت کچھ نصیحت کریں حضرت۔ کہا کرو حضرت جی، وہ چلے ہو کسی عالم کے پاس جاؤ، کس کو حضرت کو نصیحت کرو۔ حضرت یہ بڑا چنگا در ہے علماء کا در۔ حضرت جی جڑا کوئی جس کو تو ماٹھا کم از کم تینوں اے نہیں کہنے لگا کہ سنوکر کھیڈے جا، تینوں کو گل چنگی دسے گا، تو تجھے یہ نہیں کہنے لگا کہ شراب پی، کوئی گل چنگی دسے گا۔ حضرت پیار کرو علماء کے ساتھ حضرت، جب بھی ان کے پاس جاؤ کوئی موتی لے کے آؤ، بڑے موتی ہیں ان کے پاس حضرت، حضرت کوئی نصیحت کرو، کوئی گل دسو۔ میں کہتا ہوں کتنا سونا دور تھا جب لوگ بزرگوں کی بارگاہ میں جا کے یہ عرض کیا کرتے تھے حضرت کو نصیحت کرو حضرت۔ اب تو لوگ حضرت جی چیک کرنے آتے ہیں ہمیں بھی، مصباحی صاحب دیاں مچھاں کیویں دیاں نے، انہاں دی پگ کیویں دی ہے، میریاں مچھاں میری پگ چڑھ، کوئی لے جڑا میرے کو اللہ نے مینوں نور دیتا تھا، میں اپنی پگ تے مچھاں دا چیک کرنے آتے ہیں لوگ۔ چیک نہ کرنے جایا کرو، چیک نہ کرنے جایا کرو، اپنے آپ کو چیک کرو حضرت۔ میرا معاشرہ پھر ادھر فیل ہوا ہے، جدھر حضرت جی 4 بندے بیٹھے ہیں نا، کوئی اس طرح کی سوچ ہم میں نہیں رہی کہ ہم ایک دوسرے کو کہیں یار میری غلطیاں دساں تیرے نزدیک میرے کیڑی غلطی ہے۔ 4 بندے بیٹھے، رشید کو، مجید کو، رفیق کو، بشیر کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ وہ بھائی رفیق اپنی قبر میں جائے گا، مجید اپنی قبر میں جائے گا، بشیر اپنی قبر میں جائے گا، رشید اپنا جواب خود دے گا، رفیق اپنا جواب خود دے گا، مجید اپنا جواب خود دے گا۔ سلیمان تو اپنی فکر کر، تو نے اپنا جواب دینا ہے، تجھ سے تو نہیں رشید مجید رفیق کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو کیوں بیٹھا ان کو ڈسکس کر رہا ہے؟ غیبت کا گناہ وکھرا ہے، اگر وہ بات ان میں موجود ہی نہیں ہے، بہتان کا گناہ وکھرا ہے، چگلی کا گناہ وکھرا ہے۔ کیا حضرت اس طرح نہیں ہے جہاں ہم 4 بندے بیٹھے ہیں کہ ہم دوسروں کو ڈسکس نہیں کر رہے؟ بھائی خود کو ڈسکس کر میاں، برا ڈھونڈن چلیاں جگ میں برا نہ کوئی، اپنے آپ نو ویکھیا مجھ سے برا نہ کوئی، وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے آپ نو پھول۔ جہاں 4 بندے بیٹھے ہیں حضرت، موضوع اپنی ذات نہیں ہے حضرت، موضوع وہ ہے جو ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی 1000 کلومیٹر دور بیٹھا ہوا ہے، موضوع وہ ہے جو ہو سکتا ہے انگلینڈ میں بیٹھا ہوا ہے، موضوع وہ ہے جو ہو سکتا ہے کویت میں بیٹھا ہوا ہے۔ اور بھائی اس نے اپنا جواب دینا، تو اپنا دینا میاں اپنا۔ دیکھو نا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی، چھوٹا نام ہے، فرمایا کوئی نبی نہیں میرے بعد کوئی نبی ہے ہی نہیں، لیکن اگر میرے بعد یہ ممکن ہوتا کہ کوئی نبی آ سکتا، میں خاتم النبیین ہوں، اللہ نے نبوت کا دروازہ مجھ پہ بند کر دیا، ختم ہو گیا سارا۔ اگر یہ ممکن ہوتا، ممکن ہی نہیں، اگر یہ ممکن ہوتا تو میرے عمر میں یہ وصف موجود ہے کہ میرا عمر نبی ہوتا ہے، لیکن لکھا ہے کہ وہ بزم، وہ محفل
जितनी देर तक पर्दे का हुक्म था नबी पाक अलैहिस्सलाम ने वो मुनाफिकीन उसी तरह बैठा करते, लेकिन जब आर्डर आ गया फिर एक एक मुनाफिक को उठाया गया, मुनाफिकीन की अलामात बयान की गई, जिसमें ये अलामत पाई जाए वो मुनाफिक है। लिखा जी उस दिन उस नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं नबी मुमकिन नहीं, अगर होता तो उमर नबी होता, लेकिन जरा देखे हो हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला, आप उस महफिल में मौजूद नहीं थे हजरत, बाद में हाज़िर खिदमत हुए। जब वो महफिल खत्म हुई, वो बज़्म खत्म हुई, अपने इख्तिताम पे पहुंची, सहाबा अलैहिम रिदवान अपने घरों को निकले, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इजाजत लेकर। एक वो सहाबी जो उस वक्त उस महफिल में मौजूद थे, आपने उनका हाथ पकड़ा और बाहर ले गए और कहने लगे आज मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने मुनाफिकीन की अलामात बयान की हैं। कुछ मामला इस तरह का बन गया कि उमर उस वक्त हाज़िर खिदमत नहीं था, मैं नहीं सुन सका कि मेरे महबूब ने क्या क्या अलामतें बयान की हैं कि जिसमें वो पाई जाए वो मुनाफिक है। मैं मौजूद नहीं था, आप मौजूद थे, आपने तो सुना, और आप उमर को जानते भी हैं, उमर का दिन, उमर की रात, उमर की खलवत, उमर की जलवत, उमर की खरीदो फरोख्त, सारा कुछ आपके सामने है। जरा देख कर बताए तो सही, उन अलामात में से कोई अलामत उमर में तो मौजूद नहीं है। तू एमी रशीद मजीद रफीक को डिस्कस कर रहा है, अपना आप डिस्कस, और तुझसे ज्यादा कौन जानता है। ठीक है, अब वक्त नहीं है कि मैं किसी को पूछने जाऊं, तुझे तुझसे ज्यादा कौन जानता है, सुलेमान को सुलेमान से ज्यादा कौन जानता है। आप तो मुझे इतना ही जानते हैं ना, ये जो जुम्मे में हजरत मैं आके कुछ 20-25 मिनट की स्पीच करता हूँ या नमाज पढ़ेंगे, खुतबा दूंगा, उसके बाद आप मुझसे मुलाकात करेंगे, बस उसके बाद क्या हूँ वो मुझे पता है। मेरा घर कैसा है, मेरी तन्हाई कैसी है, आपको तो नहीं पता कोई। सुलेमान को सुलेमान से ज्यादा कौन जानता है। सुलेमान अपने आप को देख, तूने नहीं रशीद रफीक का जवाब देना, तू क्यों बैठा अपना वक्त जाया कर रहा है। सुलेमान को डिस्कस कर कि 40 साल उम्र होने को आई सुलेमान की, अभी तक कोई बात नहीं बन सकती, अभी तक सुलेमान में ऐसी कोई बात नहीं कि जिससे पता चले कि सुलेमान से सुलेमान का अल्लाह और उसके रसूल राजी नहीं। निकालो हजरत ये आते हैं अपने आप में से, अपने आप को डिस्कस करो, छोड़ो ये बातें। हजरत अली और जिस दिन पुत्र इत्थे हजरत अली आ गए उस दिन दुनिया, ये देखे ना, हम कनाडा पढ़ने जा रहे हैं, हम यूके पढ़ने जा रहे हैं, हम आस्ट्रेलिया पढ़ने जा रहे हैं। भाई जिन्ना कल अली होन तो फिर वो कनाडा पढ़न जान, जिन्ना कल अली होन आस्ट्रेलिया पढ़न जान, जिन्ना कल अली होन यूके पढ़न जान। होना तो ये चाहिए था यूके वाले, ऑस्ट्रेलिया वाले, कनाडा वाले हमें आके कहते ओए तुसी अली वाले हो, कोई सानू भी पढ़ाओ, तुसी अली वाले हो, कोई सानू पढ़ाओ सानू। लेकिन उस दिन जिस दिन अली कोशिश करो पुत्र, बड़ा खोता घोड़ा टांगा रेड़ा खेड़ लिया, उनको लभो पुत्र जड़ा गुण जानता हो कि अली पाक इथों, मैं सुबह से निकला हूं घर से, हजारों सैकड़ों लोगों से मिला, लेकिन अब कोई बात ही नहीं करता ऐसी यार। ये पे कह मिसबाई सब जाते जाते वो वाला वजीफा दे दो कि मैं अमीर हो जा। हल मैं कह थकिया वो जो कोई आइंदा वजीफा होए तो मैं तानू खानू दिया, पहले मैं आप ही ना पढ़ा। मैं इन्होंने कह दे इन्ने पैसे दवोगे तो मैं आना जो, फिर मेरे लिए ए पकाना है, देसी घ्यो, काली मिर्च, कुआरा लेला या कुआरा कुकड़, तो उन्होंने कह दे ने सानू अमीर होने वाला, मैं तो आप ही गरीब हाँ। वो अमीर गए वो या मज़ारा बेचने तो या किताबां बेचने हो, और जो बात पूछनी है वो कोई पूछता, जो बात पूछनी है वो बात कोई पूछता। पुत्र वजीफिया ना नहीं अमीर हुंदा बंदा, मेहनत करो इंशाअल्लाह अमीर हो जाओगे। अल्लाह पुत्र याद रखना, किसी भी दौर का यजीद हो, पीड़ों नूं जिक्र हुसैन नाल भी होनी है, थोड़ी बहुत पीड़ों नूं गमे हुसैन नाल भी होएगी। किसी भी दौर का यजीद हो, किसी भी दौर का यजीद हो, जे उन्हों मौत पैनी है तो फिक्रे हुसैन नाल पैनी। इसीलिए तो 78 साल हो गए पुत्र पानी के इर्द गिर्द घुमा रहे हैं, फिक्रे हुसैन वाल आन देंदे। जुलूस हजरत 10 मुहर्रम का हो या 12 रबी अव्वल का हो, जुलूस कढ़ना है, ठीक है कढ़ो, असी नाल तानू रस्ते में तुहाडे खान पीन दा बंदोबस्त।
ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਲੰਘੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੁਹਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸੁੱਟਾਂਗੇ। ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਜ਼ਾਰ ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਓ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ। ਖੜੀ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਲਾ ਮਜ਼ਾਰ ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮਜ਼ਾਰ ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। लेकिन फिक्र हुसैन दी गल किसी भी दौर का यजीद हो, उसको मौत है तो फिक्रे उस तरफ नहीं आने देते। हजरत अगर फिक्रे हुसैन मजबूत होती तो जियो की इतनी जुर्रत थी कि वो खाके बनाता नबी करीम अलैहिस्सलाम। ओ कमीनेओ, असी डेनमार्क ना लड़ते रहे, उनकी एम्बेसी का बाइकाट करते रहे, हम डिमांड करते रहे सफीर निकालो, उनकी प्रोटेक्ट का डिमांड हम बाइकाट करते रहे। किस काल थी डेनमार्क ना लड़ाई सी, तुसी वो काम पाकिस्तान च कर छड़े। लेकिन उन्होंने पता है कि फिक्रे हुसैन और काम क्या नया पकड़ा हुआ है सबने। वो जी देखो जी, वो देखो जी, तुम एवं ही मिसबाई साहब पे गुस्सा करते हो, वो देखो चेहरा तो नहीं ना बनाया, देखो चेहरे के उन्होंने वाइट पेपर कर छड़े। और मनहूस आदमी जो उन्होंने नबी करीम अलैहिस्सलाम की छवि बनाई, तो कहता चेहरा नहीं बनाया, लेकिन क्या उसमें वो जो नबी अलैहिस्सलाम उन्होंने बनाए थे उसकी गर्दन हुजूर की गर्दन जैसी थी? तो कहता चेहरा नहीं बनाया, तो क्या जो नबी अलैहिस्सलाम की छवि बनाई, क्या उसमें जो उसका सीना था वो हुजूर के सीना एक जैसा था? क्या जो उसमें उसके हाथ बनाए, क्या वो नबी अलैहिस्सलाम के मुबारक हाथों जैसे थे? याद रखना, नबी करीम अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक के किसी भी हिस्से की मिसल नामुमकिन है, नामुमकिन है, नामुमकिन। वो हम डेनमार्क से लड़ते रहे, रैलियां निकालते रहे, हम डिमांड करते रहे इनकी एम्बेसी बंद करो, सफीर निकालो। और साड़ी की पहली खोली सी डेनमार्क वाले ने, या साड़ी खोती नु छड़े आई डेनमार्क वाले। और लड़ाई इस बात की थी उनसे कि जो तुमने हरकत की है या करना चाहते हो वो हमें बर्दाश्त है, और तुमने वो काम पाकिस्तान में कर दिया। ठीक है, आज हम कमजोर हैं, आज हम आपस में फट चुके हैं, हम एक नहीं है। कोई यूं जान रहा, कोई यूं जान रहा, कोई यूं जान रहा, कोई यूं जान रहा, कोई यूं जान रहा। वो लड़ाइयां जो बड़ों ने खत्म की थी, हम अपने स्टेजों पे फिर खोल बैठे हैं। हम तो इस बात पे लड़ रहे हैं अहले बैत अतहार के साथ अलैहिस्सलाम लगाना है, कर दिया अल्लाह लगाना। ठीक है, हम एक नहीं है, हम लड़ पड़े आपस में। ठीक है, हम कमजोर हैं, लेकिन पुत्र याद रखना, अनकरीब वो वक्त आने वाला है जब बड़ा दरबार लगेगा। ठीक है, जज की बेअदबी हो, जज की गुस्ताखी हो, तुहीने अदालत हो, सजा 35 साल। तुहीने अल्लाह का महबूब हो तो सजा जज तुम्हारे तो नहीं रहेंगे, सदा अदालत तुम्हारी तो नहीं होगी, सदा फैसले तुम तो नहीं करोगे। अनकरीब वो अदालत लगने वाली है जिसमें फैसले। ठीक है, आज तुम जोर में हो, आज तुम्हें बड़े बचाने वाले, बड़े तुम्हारे हमायती, सिस्टम सारा तुम्हारा है इस वक्त, लेकिन सदा ये मामला रहना। उधर कितने मेरे बच्चे बैठे हो सामने, मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा पुत्र, अल्लाह न करे वो दिन आए कभी कि हमारी जुबान पे जिक्र इमाम हुसैन, अल्लाह न करे वो दिन आए कि हमारे दिलों में गमे हुसैन ना हो। मर जाइएगा तो उसको पहले मर जाइए, हमारे दिल में गमे हुसैन। इस वक्त जरूरत है फिक्र हुसैन। फिक्र हुसैन यजीद की मौत, फिक्र हुसैन यजीद की
फिक्र हुसैन। इसलिए पुत्र अब थोड़ा सा पानी से आ गया, पानी से आगे आओगे तो फिक्र हुसैन, सब्र हुसैन। को पैर पोट नहीं लिया, वो भी आई मुटिया। सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, मैं लुट गई। ये जुमले उनकी शायान शान, ये जुमले ना पुत्र, सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का ये जुमला हो ही नहीं सकता। तुझे नहीं पता सैयदा ज़ैनब कौन है? अली 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 की शहज़ादी। ज़रूर ज़रब लगी, मौला मुर्तज़ा, मौला मुर्तज़ा, ज़रब लगी। क्या कहा था मैंने? ज़रब कोई माठी ज़रब नहीं थी, लेकिन ज़रब इतनी शदीद थी, तलवार सरे पाक को काटती काटती कान पर उनका मारा। और मेरे मौला मुर्तज़ा क्या फरमा रहे हैं? फुज़्तु बि रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम अली कामयाब हो गया। अली की शहजादी के ये अल्फाज हो सकते हैं? उधर तबाह तो यजीद हुआ, तबाह शिमर हो गया, तबाह इब्ने ज़याद हुआ। अहले बैत कल भी जिंदाबाद थे, वो आज भी जिंदाबाद। अगर आपको शक है तो कोई दिन रख लो तो मैनू दस छोड़ो, मैं आ जाऊंगा। एक एक पुत्र बुआ खड़काने आते, बुआ खड़का के पूछना की है भी इत्थे कोई बंदा रहिंदा है जिहदा नाम शिमर हो सकता अंदर सीधी हट्टी है। ओ भाई तू किथे आ गया? अहले बैत मानिया दा घर शिमर है। पूरे जफरवाल के एक एक घर पर दस्तक दे के पूछ लो, कोई शिमर है, कोई यजीद है? बल्कि जो अमीरुल मोमिनीन बनाए बैठे हैं, पुत्र का नाम यजीद ते शिमर फी जमाना वो भी रखन नूं तैयार। हजरत एक एक दरवाजे पे दस्तक दो, कोई उनके नामों पे नाम रखने को तैयार नहीं है, तो फिर दोबारा निकलने हैं, फिर पूछने हैं चल के, दरवाजा खड़कावांगे तो तेनों पता की लगेगा जी ए हसन दा घर, ए गुलाम हसन दा घर है, ए हुसैन दा घर है, ए गुलाम हुसैन दा घर है। ते जे पुत्र किते पता करते करते लोट टुर जाएंगे तो पता चलेगा खादिम हुसैन दा घर है। ए खादिम ना ते खादिम हुसैन पहले भी बड़ा सा ना ते पहले भी सोना सी, लेकिन बाबे खादिम हुसैन ने तो चार चांदी ला छड़ी। किसी घर जाएगा तो तुझे पता चलेगा ये अली दा घर है, किते तेन पता लगेगा गुलाम अली दा घर है, किते पता चलेगा खादिम अली दा घर है, किते पता चलेगा इधर ज़ैनब रहती हैं, कहीं पता चलेगा फिजा रहती हैं, कहीं पता चलेगा उम्मे कुलसूम रहती हैं, कहीं पता चलेगा रुकैया रहती हैं, कहीं पता चलेगा फातिमा रहती हैं, कहीं पता चलेगा गुलाम फातिमा रहती हैं, कहीं पता चलेगा कनीज फातिमा रहती है। दीन भी गया, दुनिया भी गई, आखिरत भी गई। अहले बैत पाक से गुस्ताखियां बेबाकियां, लानतुल्लाहि अलैकुम, दुश्मनाने अहले बैत अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए। कौन सी बस्ती बसाई ताजराने अहले बैत, दौलते दीदार पाई पाक जाने बेचकर। यूं बयां करते हैं सुन्नी दास्ताने, दौलते दीदार पाई पाक जाने बेचकर, करबला में खूब ही चमकी दुकानें। ये जुमले बल्कि कसम वाली गल है हुजूर, मैं तो झूठूं सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को पढ़ता हूं मैं जनाब, वाकई मेरी शेर दी थी और वाकई अल्लाह और अल्लाह के रसूल के शेर की वो शेरनी बेटी थी हजरत। हुजूर किथे सैयदा ज़ैनब ने नहीं दसिया कि माली दी धीयां मेरियां रगां च नूरे, मेरियां रगां च खूने नबूवत दौड़ रहा है। जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को वो मनहूस पलीद शहीद करने लगे, ये मौला अली की शेरनी चुपट पड़ी। कमीने, इनको हया नहीं था खुद रसूल का। जब खानदान नबूवत की शहजादियों को लोंडियां बनाने लगे, अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने शेर दी शेरनी
मैं तो जैसे जैसे सैयदा ज़ैनब को पढ़ता हूं, दरबार यजीद में हजरत अली पाक के लहजे में खुतबा दिया, दरबार यजीद में हजरत अली पाक के लहजे में खुतबा दिया। चौका काम में कोई एक अहमियती नहीं, सारा मुबारक खानदान जामे शहादत नोश कर चुका है। एक बीमार ज़ैनुल आबिदीन, मस्तूरात हैं, बीबियां हैं, पर्दादार, रोज के हजरत लहजा अली तकरीर करना ऐ सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा दा वस्फ़। मुझे नहीं पता इस वक्त हजरत मुझे नहीं पता इस वक्त सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का रोजा मुबारक इस जानिब है, इस जानिब है, इस जानिब है या इस जानिब है, मुझे नहीं पता कोई भी। सलाम मेरे अल्लाह ने पहुंचाना, या मेरा अल्लाह, मेरा दिल कह रहा है हजरत, मैं अर्ज़ करूं सलाम या सैयदा ज़ैनब। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के शेर की शेरनी सैयदा ज़ैनब, सलाम सलाम सलाम। विलादत हुई ना सैयदा ज़ैनब की, नबी अलैहिस्सलाम नहीं मौजूद मदीने, इंतजार किया गया, नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, सैयदा ज़ैनब पेश की गई, ना रखो ना जान, फरमाया ज़ैनब जिससे बाप की जीनत हो, और फिर फरमाया अली ना असी नहीं रखिया, ना अल्लाह ने रखे। और फिर लिखा है निगाह नबूवत में, हाय हाय आंसू भी आए, क्योंकि निगाह नबूवत देख रही थी कि मेरी ज़ैनब ने केड़े केड़े इम्तिहान दिए। हुसैन जामे शहादत नोश कर गए, अब्बास अलमदार जामे शहादत नोश कर जाएंगे, अली अकबर अल कासिम मोनो मोहम्मद रह जाएगी तो मेरी निगाह नबूवत देख रही थी मेरी ज़ैनब को बेड़ियां डाल शाम के बाजारों में घूमे। इश्क में क्या बचाई है, इश्क में क्या लुटाई है, हाले नबी ने लिख दिया सारा निसाब रे। सुल्तान बाहू तो कमाल ही कर गया, सच्चा इश्क हुसैन अली का, सच्चा इश्क हुसैन अली का, सिर दे फराज ना सीखा उत्ते मक्खन पकाना डाढा औखा काम है, बच्चे दे के दीन बचाना सखी हुसैन। पुत्र हाथ जोड़ के मेरे पुत्रों दीन सीखो, टूट के पुत्र नबी अलैहिस्सलाम दी अहले बैत नाल मोहब्बत करो। लेकिन पुत्र कुछ लइए हमने कुछ भी नहीं, हमने कुछ भी नहीं। आखिरी बात कर, हमने कुछ भी जो लेना था आखिरी बात करके बात खत्म। यहाँ हजूर ऐसे आखिरी बात, यहाँ ऐसे नमाजी भी बैठे होंगे जिन्हें नमाज पढ़ते हुए कमो बेश को 25 साल हो गए, कुछ ऐसे नमाजी भी बैठे होंगे नमाज पढ़ते 20 साल, कुछ ऐसे नमाजी भी बैठे होंगे 15 साल 10 साल। हजरत हम अपने 25 या 15 या 10 को दुनियावी नुक्ता नजर से देखें तो हमने तरक्की की है। हम आगे मिसाल के तौर पे आज से 25 साल पहले हजरत रक्शे पे थे, अल्लाह ने को पैसे दिए तो साइकिल खरीदी, अल्लाह ने और पैसे दिए तो मोटरसाइकिल ले ली, और पैसे दिए मेहरान ले ली, और पैसे दिए आल्टो ले ली, और पैसे दिए कल्टस ले ली, और पैसे दिए सिटी ले ली, और पैसे दिए GLI ले ली। अगर आप अभी GLI पे नहीं पहुंचे कहीं रास्ते में दिल तो करता ये अल्लाह पैसे देगा तो लवांगे। पहले हजरत कच्चा घर था, जैसे अल्लाह की जात ने पैसे दिए सबसे पहला काम क्या किया, पुराना घर आके और पैसे दिए तो साथ वाला खरीद के, और पैसे दिए तो किसी सोसाइटी में चले गए। पहले हजरत कोई किसी दुकान से लेकर 800 वाला जोड़ा भी पहन लिया करते थे, अल्लाह ने पैसे दिए। नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे अल्लाह दवे तो तेरे पाए लत्ते जो पता लगना चाहिए था। अल्लाह ने कहा नहीं भाई हूँ 1500 वाला नहीं। फिर गुल अहमद
اور پیسے دیے تو الکرم، اور پیسے دیے تو بادشاہ۔ پہلے حضرت کو سادی سی جوتی بھی پہن لیتے تھے، پھر اللہ نے پیسے دیے، باٹا اور دیے، سربت اور دیے، اربن سول اور دیے، مشہوری اور دیے۔ سچ سچ بتانا بھائی، بات ختم کرنے لگا، سچ سچ آپ نے بتانا ہے۔ ہر لحاظ سے ہم نے چینج اور ترقی، سچ بتانا بھائی۔ آج سے 25 سال پہلے یا 20 سال پہلے یا 10 سال پہلے یا 15 سال پہلے جب بھی نماز شروع کی تھی تب بھی سجدے میں سبحان ربی اللہ اللہ 3 بار ہی پڑھتے تھے، 20 سال بعد بھی بتایا تو نہیں؟ اچھا کی بتا نہیں سکتے، بتایا باقی سارا کچھ ہی بتایا، یہ سبحان ربی اللہ اللہ ہونا تو یہ چاہیے تھا 20 سال میں، سبحان ربی اللہ اٹھتے بیٹھتے زبان سے نکلتا سبحان ربی۔ کہتی ہے ساری رات سیدہ کائنات نے اللہ کے حضور سجدے میں گزارا۔ ساری رات کو 35 منٹ کا نام نہیں، ساری رات کو 55 منٹ کا نام نہیں، آج 9:15 تے عشاء ہوئی ہے اور فجر جا کے کتنے بجے ہونی ہے؟ 4 بجے۔ اس کا نام رات ہے۔ ساری رات اللہ کے حضور سجدے میں گزارنی، اور جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے صدائے فجر بلند کرنی، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو پھر رو کر سیدہ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنی رب کریم تیری رات ہی ختم ہو گئی، کوئی رات تو ایسی بنا سجدہ سیدہ کا فاطمہ کا سجدہ ہی پورا ہو جائے۔ سانو 20 سال ہو گئے نے، 3 بار تو اگے گئے، 3 بار تو بھی اگے گئے۔ اللہ ہم سب کے حال پہ رحم کرے اور اللہ ہمیں فکر امام حسین امام علی مقام سے مغفرت عطا فرمائے۔ کروانے والوں کی اس محفل کو، کوشش کو، کاوش کو اللہ کی بارگاہ